Hello, and once again I welcome you all in your English class of today's lesson. A very warm good morning to all my dear students. I hope you all are doing very fine, and today my dear students we are going to start our chapter number 4 named as Bipin Chaudhary's Lapse of Memory from your book Honeybee, that is your textbook. So let us begin with the chapter. Before I start the chapter, I just want to give a short intro of the writer of this chapter, who is Mr. Satyajit Ray himself. You can see on the screen there is a picture of Mr. Satyajit Ray. So who is he? What does he do? What are his further achievements? Let us know. As written here, Satyajit Ray was an Indian film director, script writer, documentary filmmaker, author, essayist, lyricist, magazine editor, illustrator, calligrapher and music composer. He is celebrated for works such as the Apu trilogy, The Music Room, The Big City and Charulata and etc. My dear students, Mr. Satyajit Ray कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है, कोई मामूली इंसान नहीं है. It is really a proud moment for India and all of us that we had such a visionary film director in our film industry, a writer, an author, an essayist and lyricist and lots of things I can say. He has multi-talent. He was a multi-talented person. So इनकी छोटे से इंट्रो में मैं आपको बता दूं कि सत्यजीत रे ने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स लिखे हैं, इन्होंने ये बहुत अच्छे लेखक रहे हैं, इन्होंने कैलीग्राफी भी करी है, इन्होंने संगीत को कंपोज किया है, यानी कि वो कंपोज़र भी रहे हैं, म्यूज़िक कंपोज़र भी रहे हैं. तो वी कैन से ऑल एंड ऑल ही वॉज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन. और सोचिए इतनी अच्छे राइटर की लिखी हुई एक कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम इन्होंने रखा मिस्टर बिपिन चौधरी's Lapse of Memory. So let us find out what are the further story in this chapter. Let's go ahead. So here in this chapter there is one character named as Mr. Bipin Chaudhary. You can see on the screen Mr. Bipin Chaudhary have had a wife who has passed years before. उनकी बीवी का जो है वो निधन हो चुका है, जिसकी वजह से वो अकेला खुद में महसूस करते हैं. बट टू कीप हिमसेल्फ बिजी ही डज मैनी थिंग. लेट्स फाइंड आउट. सो आफ्टर लूजिंग हिज वाइफ ही हैड नो चाइल्ड. उनके कोई बच्चे नहीं थे और वो ज़्यादातर वक्त जो है उन्होंने अपने जीवन का कहाँ निकाला. ही यूज्ड टू लिव इन कैलकटा. सो इन द स्टोरी ही इज़ लिविंग इन कैलकटा. हिज वाइफ हैज़ पास्ड अवे and he had no children. So he used to work in an office center and he was living a happy life. He was quite a wealthy person. He used to keep himself busy into office in his work, and for his time pass as a hobby he used to go to a bookstore. As he was a book lover, he was a pro reader too. On a daily basis he used to go to the bookstore and he had a quite an interesting friend circle. He had many of his friends. So the very first friend of him is as you can see in the screen is known as Mr. Chunni Lal. Okay, so Mr. Chunni Lal, he also lives in Calcutta. He is a school friend of Mr. Bipin Chaudhary and previously he used to work in a travel agency, and right now he has left that particular job and he is searching a job. On a daily basis he comes to meet Mr. Bipin Chaudhary in his home so that he could suggest him any kind of a job and he could find a new job. तो जो चुन्नी लाल है उनकी नौकरी जा चुकी है, वो एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे. फिलहाल वो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है. तो अपने दोस्त बिपिन चौधरी के घर वो डेली बेसिस पे आते हैं क्योंकि बिपिन चौधरी एक ऑफिस में काम करते हैं. तो कहीं ना कहीं चुन्नी लाल को ये उम्मीद है कि बिपिन मुझे कोई ना कोई काम बता देगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी. तो ऑन डेली बेसिस चुन्नी लाल जो है वो बिपिन के घर में आते जाते रहते. लेट्स सी व्हाट इज़ द फर्दर स्टोरी. सो other than Mr. Chunni Lal, Bipin Chaudhary has many of his friends. So the another friend is Mr. Mukherjee, Mr. Bagchi, Mr. Parimal Ghosh and his doctor Mr. Chanda. तो चुन्नी लाल जी के अलावा इनके और भी दोस्त हैं जैसे कि मैंने अभी आपको नाम बताया. सो दिस वॉज द कैरेक्टर इंट्रो, दिस वॉज द प्लेस इंट्रो एंड अ क्वाइट अ लिटिल बैकग्राउंड, स्टोरी बैकग्राउंड फॉर ऑल ऑफ यू. सो नाउ वी विल बिगिन द चैप्टर and we will read the chapter in a very brief manner. So let's begin. So my dear student, in this chapter as our character name is Bipin Chaudhary. So before you read, let us start the reading. Do you have a good memory? Has your memory ever played any tricks on you? Forgetfulness often puts you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy.
In this story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. He has never been to Ranchi. He insists through there are many witnesses to the contrary. What is the suspense all about? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी मेमोरी अच्छी है या नहीं ये आपको सोचना पड़ गया हो, या आपकी याददाश्त ख़राब है ये प्रूव करने के लिए क्या आपके साथ कभी किसी ने ऐसा मजाक किया है? क्या आपकी याददाश्त, आपकी भूलने की आदत ने कभी आपको ये सोचने पे मजबूर किया है कि आपकी याददाश्त ख़राब हो रही है? क्या आपकी याददाश्त आपके जीवन का एक पूरा हफ्ता या महीना आप भूल गए, कभी आपको ऐसा लगा है? क्या ये भूल जाने के पागलपन की वजह से आपको कभी ऐसा क्रेज़ी वाली फीलिंग आई है? या आपके दोस्तों ने कभी आपके साथ कोई ट्रिक प्ले किया जिससे आपको लगा हो कि आपकी याददाश्त ख़राब है? ऐसे सारे सवाल पूछते हुए हमारे राइटर मिस्टर सत्यजीत रे आपको ये कहानी, इस स्टोरी का एक बैकग्राउंड बता रहे हैं और कहते हैं कि बिपिन बापू के साथ एक दिन ऐसा ही एक मजाक हो जाता है। वो मजाक है या नहीं, ये हमको इस चैप्टर में पता करना है। कि उनको लगता है कि अपनी लाइफ के पूरे एक पार्ट को वो रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। वो पार्ट है उनके रांची जाने का पार्ट, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वो रांची गए थे कि नहीं। उनके हिसाब से वो नहीं गए थे, पर उनको विटनेसेस मिलते हैं जो कहते हैं कि आप गए थे। तो यही हमको इस स्टोरी में फिगर आउट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सो एन्जॉय दिस वेरी सस्पेंस थ्रिलर काइंड ऑफ अ स्टोरी माय डियर स्टूडेंट्स विथ मी। लेट्स बिगिन। Every one day on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in Kalicharan's in New Market to buy book. हर हफ्ते क्या होता था, बिपिन बापू अपने काम से लौटने के बाद वो जो है कालीचरण में एक नए मार्केट में रुकते थे और कुछ किताबें खरीदते थे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, वो बुक लवर थे, हर तरह की बुक पढ़ना उनको पसंद था। 4-5 किताबें वो एक साथ खरीद लिया करते थे ताकि पूरे हफ्ते पढ़ सके। घर में अकेले रहते थे तो टाइम पास भी हो जाता था, बोर भी नहीं लगता था, क्वालिटी टाइम भी था। एंड ही वॉज अ प्रो रीडर ऑल्सो। तो ही यूज़ टू बाय 4-5 बुक्स ऑल टुगेदर टू स्पेंड अ वीक, और वो पूरे एक हफ्ते में पढ़ लिया करते थे। उस दिन क्या हुआ आइए देखते हैं। Today at Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from the close quarter. He turned around and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. "I don't suppose you recognize me. Have we ever met before?" asked Bipin Babu. The man looked gently and surprised. "We met every day for a whole week. I arranged for a car to take you to the Hudro Falls in 1958 in Ranchi. My name is Parimal Ghosh." अब क्या होता है, जब वो किताबें अपने लिए ख़रीद रहे होते हैं उनको लगता है पीछे से उनको कोई घूर रहा है। पलट के देखते हैं तो वाकई को घूर रहा होता है। तो फिर उस आदमी के पास जाके वो पूछते हैं कि भाई आप मुझे घूर रहे हैं, मैं आपको जानता हूँ क्या हम कभी मिले हैं? तो वो व्यक्ति जो है आश्चर्य से उनको देखते हैं सरप्राइजिंगली और कहते हैं कि भाई पूरे एक हफ्ते हो गए हमको मिलते हुए। मैं वही इंसान हूँ जिसने 1958 में आपके लिए रांची में कार बुक करी थी। मेरा नाम है परिमल घोष। तो बिपिन बाबू कहते हैं रांची? Now Bipin Babu realized that it was not he but this man who was making a mistake. Bipin Babu had never been to Ranchi. अब वो जो है ये श्योर हो जाते हैं बिपिन बाबू कि भाई ऐसा नहीं है कि ये आदमी गलत है, कि मैं गलत हूँ, ये आदमी गलत है। वो उस आदमी से कहते कि नहीं आपसे कोई गलती हुई है, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। The man raised his eyebrow, bit his tongue and said, "Do I know you? Who doesn't know you, Bipin Chaudhary?" तो जब वो आदमी ऐसा कहता है कि मैं आपसे रांची में मिला था, आप जो है मुझे रांची में मिले थे तो मैंने आपके लिए कार बुक करी थी, तो बिपिन बाबू कहते कि नहीं मैं रांची नहीं गया था, आपको शायद कोई धोखा दिया हुआ हो, आप मुझे नहीं जानते और ना ही मैं आपको नहीं जानता। तो वो आदमी कहता है कि बिपिन बाबू आपको कौन नहीं जानता, आपको तो सब जानते हैं। बिपिन बाबू उनकी बातों को इग्नोर करते हैं और बुक शेल्फ की तरफ देखने लगते हैं। फिर आगे वो व्यक्ति अपना बोलना जो है कंटिन्यू करते रहते हैं। Bipin Babu now turned towards the bookshelf and said, "Still you are making a mistake. One often does. He never been to Ranchi." The man now laughed aloud. "What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a fall into Hudro and cut your right knee. I brought you to iodine. I had fixed up to your car to go to the Netterhut the next day, but you couldn't because of the pain in the knee. Can't you recall anything? Someone else you know was also in the Ranchi at that time, Mr. Dinesh Mukherjee. You stayed in a bungalow. You said you didn't like the hotel food, would prefer to go to your meals cooked by a bawarchi. Mr. Mukherjee stayed with his sister. You had a big argument with about him moon landing, remember?"
अब क्या होता है, जब बिपिन बाबू बार बार कहते हैं कि मैं रांची नहीं गया, तो वो आदमी नहीं मानता, जो परिमल घोष होते हैं वो नहीं मानते और उनको लगातार रांची की बातें बताते हैं कि नहीं आप याद करिए, आप 1958 में जो है आप जो है रांची आए थे, आप जो है क्या हुआ, थोड़ा सा हुड्रो आपको जाना था, मैंने आपके लिए जो है कार बुक करी थी। आपको हुड्रो इसलिए जाना था क्योंकि आपके घुटने में कट आ गया था, आप हुड्रो में वहाँ पर रुके हुए थे, आपके घुटने में कट आ गया था, मैंने आपके लिए कार बुक करी थी और कार बुक करने के पहले मैं आपको आयोडीन ला कर दिया था और आपके घुटने पे मैंने लगाया था। आपको उस दिन जो है नेतरहट जाना था, मैंने आपके लिए कार बुक करी, लेकिन आप नहीं जा सके क्योंकि आपके घुटने में लगी थी और आपको होटल का खाना पसंद नहीं आता था। तो उस वक्त शायद आपका एक और पहचान का कोई आपका दोस्त दिनेश मुखर्जी वहीं पर हुड्रो में रुका हुआ था, रांची में ही हुड्रो में रुके हुए थे और आपने कहा कि होटल का खाना पसंद नहीं आता तो मैं अपने दोस्त के घर जाके उनके बंगले में खाना खाऊंगा। और आपके जो दोस्त हैं अपनी बहन के साथ वहाँ पर रहते थे। इतनी सारी बात जो है परिमल घोष बिपिन बाबू को बताते हैं और फिर ये भी बता देते हैं कि आप मुझे बता रहे थे कि जब आप अपने दोस्त के घर गए थे बिपिन बाबू, तो आपका और आपकी दोस्त का मून लैंडिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया था। अब आपको याद आया कि आप रांची गए थे। तो बिपिन बाबू बड़े परेशान से हो जाते हैं और अपनी आंखों को बुक की ओर, किताबों की ओर देखते हुए कहते हैं कि आप 58 की बात कर रहे हैं, 1958 की। 1958 में कौन से मंथ की बात कर रहे हैं आप? तो परिमल घोष कहते हैं कि अक्टूबर के महीने में आप 1958 में रांची आए थे। तो बिपिन बाबू कहते हैं कि नो सर, सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। बिपिन बाबू उनसे कहते कि नहीं आपसे कोई गलती हुई होगी, 58 में मैं कानपुर में था अपने दोस्त के साथ, वहाँ मैं पूजा में गया हुआ था। तो वो आदमी वहीं पे नहीं रुकता, वो उनके पीछे उनको फॉलो करता है। बिपिन बाबू दुकान से बाहर निकलने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं आपको याद है आप उस बंगलों में रुके थे, उस बंगलों में एक बरामदा था, आपने मुझे वहीं बरामदे में बंगलों में अपने फैमिली के बारे में बताया था कि आपकी फैमिली नहीं है, आपकी वाइफ गुजर चुकी हैं, आपके बच्चे नहीं हैं, आप एक ऑफिस में काम करते हैं और कुछ 10-1 साल हो गए हैं आपकी वाइफ का देहांत हुए और आपके एक भाई भी थे जो शायद थोड़े पागल हो चुके थे और रांची के ही किसी मेंटल हॉस्पिटल में थे और इस वजह से आपको रांची आना पसंद नहीं है, ऐसे पूरी बात आपने मुझे बताई थी। बिपिन बाबू शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई इसको तो मेरे बारे में पूरी बात पता है और ये इतनी श्योरिटी से कह रहा है कि तुम रांची गए थे, फिर मुझे कैसे याद नहीं आ रहा? और अगर ये इंसान झूठ बोल रहा है तो इसकी रांची वाली बात झूठ हो सकती है, इसको मेरी पूरी फैमिली डिटेल के बारे में कैसे पता है? तो भाई ये सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है, मेरी याददाश्त खराब है, ये याद भी झूठा है। ऐसा सब सोचते हुए वो एक कार करके उस जो है बुक शॉप से निकल जाते हैं। आगे क्या होता है ये देखते हैं। Bipin Bapu's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga. Will you, Sitaram? Driving up the Strand Road, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. अब क्या होता है, जब वो अपनी कार में बैठ जाते हैं तो अपने ड्राइवर सीताराम से कहते हैं कि तुम जो है गंगा के किनारे ले चलो, स्ट्रैंड रोड में। जब अपने कार के अंदर बैठे रहते हैं तो फिर सोचते हैं कि मुझे उस अनजान आदमी की बातों पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, इसने मेरा पूरा दिमाग हिला के रख दिया। फिर वो सोचते रहते कि वो आदमी सच बोल रहा था कि झूठ बोल रहा था। फिर वो सोचते हैं कि अगर वो झूठ बोल रहा था तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी पैंट उठा के अपने घुटने पे लगे वो उस निशान के बारे में सोचता हूँ, उसको देखता हूँ कि अगर वो कह रहा है कि मैं गिरा था, मेरे घुटने में चोट लगी थी, कोई ना कोई निशान तो होगा। तो वो क्या करते हैं, अपने घुटने के निशान को देखने के लिए अपने पैंट को अपने पैरों के ऊपर उठाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे वाकई में एक 1/2 इंच का कट होता है। अब वो सोच में पड़ जाते हैं कि भाई वो आदमी कह रहा था कि मेरे घुटने में एक 1/2 इंच का कट होना चाहिए, तो ये तो वाकई में है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि मैं कहाँ गिरा था। अब वो सोचते हैं कि एक काम करता हूँ कि मैं अपने दोस्त से पूछ लेता हूँ, दिनेश मुखर्जी से। दिनेश मुखर्जी वहीं पर उस समय जो है उनके साथ रहा करते थे। The Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that the Dinesh was also in Ranchi at the same time. The best thing surely would to ask him. He lived quite near in the Benindran Street. अब बिपिन बाबू क्या सोचते हैं कि चलो मैं जो है दिनेश मुखर्जी से ही, ये तो यहीं पास में ही रहता है बेनिंदन स्ट्रीट में मेरे बगल में, तो चल के उससे पूछ लेता हूँ कि दिनेश क्या अपन 58 में रांची में थे क्या। तो फिर वो सोचते हैं कि नहीं भाई, दिनेश जो है बड़ा मजाक भी उड़ाता है, उसका सरकाज़म बड़ा ख़राब रहता है, उससे नहीं पूछता, बेटर है मैं जो है सो जाता हूँ। वो अपने घर जो है जाते हैं बुक स्टोर से और जो है एयर कंडीशन रूम में अपने जा कर के लेट जाते हैं। लेकिन उनको बड़ी बेचैनी मची रहती है कि मुझे क्यों नहीं याद आ रहा कि मैं वहाँ गया था कि नहीं गया था।
अगले दिन सुबह होती है, वो अपने ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस जाने के बाद घंटों वो अपने काम करने में मन लगाने की कोशिश करते हैं, मगर उनका काम में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता उनका मन? क्योंकि उनके दिमाग में वो आदमी की बातें घूमती रहती कि आप रांची गए थे, ऐसा वैसा ये वो। तो सोचते हैं कि चलो दिनेश से जाके नहीं मिल सकता, कम से कम उसको कॉल तो लगा के पूछ सकता हूँ कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। तो वो अपने दोस्त दिनेश का नंबर डायल करते हैं, उनको कॉल लगाते हैं और पूछते हैं कि दिनेश एक बात बताओ, क्या 1958 में हम दोनों रांची में थे? तो दिनेश कहते हैं कि 1 मिनट रुकना, मैं अपनी डायरी में चेक करके आता हूँ। वो अपनी डायरी चेक करने के लिए चले जाते हैं, चेक करके आके बताते हैं। तब तक वो फ़ोन को होल्ड पे रख देते हैं और तब तक ये बड़े परेशान से होते रहते हैं कि यार पता नहीं ये क्या बोलेगा क्या नहीं। दिनेश आके कहते हैं कि हाँ हम उस समय रांची में मिले थे। तो तुम्हें याद नहीं आ रहा था क्या? तुम्हारी तो मेमोरी बड़ी अच्छी है, ऐसा बोलते हैं वो बिपिन जी को। तो बिपिन कहते हैं नहीं ऐसा नहीं था, बस 1 सेकंड को लगा तुमसे कंफर्म कर लूँ तो मैंने तुम्हें कॉल कर लिया था। फिर वो फ़ोन रख देते हैं। जब वो फ़ोन रखते हैं तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि वो आदमी भी कह रहा है कि मैं 1958 में रांची में था, मेरा दोस्त बिपिन भी कह रहा, मेरे दोस्त जो है मुखर्जी भी कह रहे हैं कि मैं उस समय जो है रांची में था। तो ये लोग सच कह रहे हैं तो क्या मेरी याददाश्त ख़राब है या मेरी याददाश्त अच्छी, ये लोग झूठ कह रहे हैं? ऐसा सब सोचते सोचते वो बड़े हैरान परेशान से हो जाते हैं। लंच में वो अपने लिए सैंडविच लाए होते हैं, वो भी वो नहीं खाते और वो तुरंत उस समय घर के लिए चले जाते हैं। अब क्या होता है आइए देखते हैं। अब ये होता है कि बिपिन बाबू सोचते हैं कि ऐसा भी तो नहीं हुआ है कि 20-25 साल पहले की बात बता रहे हो, 7-8 साल पहले की बात बता रहे हैं और ये बात मुझे याद क्यों नहीं है। ऐसा वो अपने बारे में सोचते हैं। फिर ये भी सोचते हैं कि भाई अगर मेरी याददाश्त ख़राब है तो फिर मैं अपने ऑफिस में अच्छे से कैसे काम कर पा रहा हूँ, मुझे अपने ऑफिस की सारी चीज़ें कैसे याद रहती हैं। हो ना हो ये दोनों ही कहीं कुछ धोखा खा रहे हैं या कुछ झूठ बोल रहे हैं। ऐसा सोचते सोचते 2:30 बजे ही उस दिन वो अपने ऑफिस से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अपने घर जाते हैं, बड़े हैरान परेशान से रहते हैं, इधर उधर जो है चक्कर लगाते हैं, उनके सर में सोच सोच के दर्द होने लगता है। फिर जो है वो जा कर के अपने बेड में लेट जाते हैं और लेटे 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 शाम के 7:30 बज जाते हैं। शाम के 7:30 बजे अचानक उनके जो नौकर होते हैं वो उनके पास आते हैं और कहते हैं कि साहब आपसे मिलने के लिए आपके दोस्त चुन्नी लाल आए। मैंने आपको जैसे शुरू में ही बताया, चुन्नी लाल उनके वो दोस्त थे जो बचपन से ही उनके स्कूल में उनके साथ पढ़े थे। ये लोग बचपन के दोस्त थे। चुन्नी लाल की फाइनेंशियल कंडीशन उस समय ख़राब चल रही थी, उनकी नौकरी छूट चुकी थी, तो वो रोज़ बिपिन जी से कुछ फाइनेंशियल मदद लेने भी आते थे और कुछ ना कुछ नौकरी के बारे में पूछने के लिए आया करते थे। तो चुन्नी लाल जब आते हैं तो वो अपने नौकर से कहते हैं कि फिर सोचते हैं अपने दिमाग में कि फिर से नौकरी मांगने आया होगा, नहीं तो पैसा मांगने आया होगा। तो अपने नौकर को कहते हैं जाओ उसे कह दो कि बिपिन घर में नहीं है। तो नौकर निकलने लगते। फिर उतने में अपने नौकर को रोकते, कहते रुक जाओ मत बोलो, मैं जाकर उससे मिल लेता हूँ। जाके जो वो चुन्नी लाल से मिलते हैं और कहते हैं कि चुन्नी तुमको ये याद है क्या कि 58 में मैं रांची गया था कि नहीं गया था? तो चुन्नी कहते हैं बड़े अमेज से होके, क्यों भाई ऐसी बात क्यों कर रहे हो तुम? Chunni sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with a long, hard stare and said, Bipin, have you taken drugs or something? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. I know that old friendship doesn't mean much to you, but at least you had a good memory. You can't recall any mean thing you have forgotten about the Ranchi trip? तो फिर चुन्नी भी कहते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या? सोफे में बैठते और बोलते हैं तुम्हारी मेमोरी अच्छी नहीं है क्या? तुम 1958 का रांची ट्रिप कैसे भूल सकते हो? अच्छा एक बात बताओ कि तुमको रांची ट्रिप याद नहीं है, ठीक है, ये बताओ मेरी लास्ट जॉब क्या थी? चेक करते हो बिपिन जी की मेमोरी। तो बिपिन कहते हैं कि मुझे पागल समझ के रखो क्या? मुझे अच्छे से याद है कि तुम्हारी आखिरी जॉब जो थी वो ट्रैवल एजेंसी की थी। तो फिर उनके दोस्त चुन्नी लाल कहते हैं कि हाँ भाई ये बात तो वो सही कह रहा है। कहते तुम्हें ट्रैवल एजेंसी वाली मेरी जॉब याद है लेकिन 1958 का ट्रिप याद नहीं। जब मैं ट्रैवल एजेंसी में जॉब करता था तो एक दिन तुम मेरे पास आए, तुमने बोला तुमको रांची जाना है, टिकट कर दूँ। तो मैंने ही तो तुम्हारे लिए टिकट करी थी, तुमको मैं कंपार्टमेंट तक छोड़ के आया था, फिर तुम रांची गए थे। फिर बिपिन बाबू कहते हैं अच्छा ऐसा क्या? ठीक है चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ। फिर ऐसा बोल के चुन्नी लाल चले जाते हैं। बिपिन बाबू बड़े परेशान हो जाते हैं कि बुक शॉप में वो आदमी भी बोल रहा था कि 1958 में आप रांची गए हो, मेरा दोस्त मुखर्जी भी बोल रहा था कि तुम रांची गए हो, और तो और अब चुन्नी लाल भी बोल रहा है कि उसने मेरे लिए टिकट करी थी। कहीं वाकई मेरी याददाश्त तो नहीं जा रही, ऐसा वो सोचते हैं। फिर अपने डॉक्टर परेश चंदा को वो फ़ोन लगाते हैं, उनके पास जाकर के वो बोलते हैं कि भाई मेरे साथ आज एक ऐसी घटना हुई, सब लोग मुझे 1958 का एक इंसिडेंट याद दिला रहे पर मुझे याद नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब आप प्लीज़ मुझे कुछ दवाइयाँ दीजिए। परेश चंद्रा जी जो उनके डॉक्टर होते बड़े परेशान हो जाते, कहते बिपिन ऐसा तो जीवन में पहली बार मेरे साथ केस आया है जो कह रहा है कि मुझे बाकी चीज़ें याद है लेकिन सिर्फ एक इंसिडेंट याद नहीं आ रहा है। पहले कभी तो मैंने ऐसा केस सुना नहीं। तो तुम एक काम करो, तुम ये क्रॉस चेक करने के लिए कि क्या वो लोग सच बोल रहे हैं या झूठ, या फिर तुम्हारी याददाश्त ख़राब है कि नहीं, फिर से एक बार रांची जाओ।
रांची जाओगे, वहाँ चीज़ों को देखोगे तो हो सकता है देख के सुन के तुमको चीज़ें याद आए। तो चुन्नी बाबू क्या करते हैं, अगले ही दिन ऑफिस जाते हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स को काम समझाते हैं, शाम की टिकट करके रांची के लिए निकल जाते हैं। रांची को जब वो स्टेशन में उतरते हैं तो वहाँ के रोड, वहाँ के बाज़ार, वहाँ के बिल्डिंग, होटल सब देखते हैं। सब देखने के बाद भी उनको ये याद नहीं आता कि वो रांची कभी आए हैं। वो कहते नहीं नहीं, अब मैं श्योर हूँ मैं रांची कभी नहीं आया। फिर सोचते हैं कि वो आदमी कह रहा था कि उसने मेरे लिए रांची में हुद्रो जाने तक की एक टिकट जो है वो बुक की थी, तो चलो मैं हुद्रो जाके देखता हूँ। वो हुद्रो जाते हैं, हुद्रो जाने के लिए कार बुक करते हैं और दोपहर को ही हुद्रो के लिए निकल पड़ते हैं। 5 बजे जब वो हुद्रो पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो है वो टहल रहे होते हैं, उस जगह को देख के याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं यहाँ कभी आया हूँ कि नहीं आया हूँ। उतने में ही 2 आदमी उनके पास आते हैं और देखते हैं कि बिपिन बाबू गिर पड़े हैं, बेहोशी में बड़बड़ा रहे हैं कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं बची है। अगले दिन जब बिपिन बाबू की नींद खुलती है तो वो देखते हैं कि मैं वापस कलकत्ता में हूँ, और वो रियलाइज़ करते हैं कि मैं वहाँ कैसे गिर गया, क्यों गिरा, क्या मेरा बैलेंस ऑफ माइंड हिल गया है, क्या अब मुझे पागल खाने जाना पड़ेगा, क्या वाकई मेरी याददाश्त ख़राब हो रही है, मैं वहाँ गिरा तो कैसे गिरा, मैं आखिर यहाँ कलकत्ता कैसे आया। ये सारी बात वो सोच ही रहे होते हैं। उतने में डॉक्टर चंदा को वो फ़ोन लगाते हैं और बोलते हैं कि चंदा साहब आप जल्दी मेरे घर आ जाइए, मैं कल गिर पड़ा था और मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं कैसे गिरा, क्या गिरा, जिसकी वजह से मेरे सिर में बड़ा तेज दर्द हो रहा है। मैं नहा धो करके अपने पलंग पे लेटा हुआ हूँ और बर्फ़ से भरी हुई एक थैली अपने सर पे मैं रखा हुआ हूँ, आप आ जाइए, मुझे कुछ दवाइयाँ दे दीजिए। इतना कह के जब वो फ़ोन रखते हैं अपने डॉक्टर साहब से बात करके, तो उनके नौकर उनके पास आते हैं, उनको एक ग्रीन कलर का एनवलप देते हैं। उस एनवलप में लिखा होता है अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. इतनी बुरी कंडीशन में, इतना बीमार होने के बाद भी बिपिन बाबू उस चिट्ठी को खोलते हैं और खोल करके पढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। Dear Bipin, I had no idea that affluence would bring you about the kind of a change in you that it has done. It was so difficult for you to help out an old friend down on his luck. I had no money, so my resources are limited. What I have is imagine a part of which I use in retribution of your unfeeling behavior. Well, you will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, I'll see me through the next few months. When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. A unique case, said Dr. Chanda. I shall certainly write about it in a medical journal. The reason why I sent you for, said Bipin Babu, is that I have a pain in a hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a pain killer. तो जब वो चिट्ठी खोलते हैं तो उस चिट्ठी में लिखा होता है कि मेरे दोस्त बिपिन, मैंने तुम्हें ये चिट्ठी इसलिए लिखी है ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि तुम 1958 में कभी रांची नहीं गए थे। मैं चुन्नी लाल, हमारे दोस्त मुखर्जी, बुक शॉप में वो अनजान आदमी और साथ ही साथ 1-2 और दोस्त, हम सब ने मिलकर तुम्हारे साथ ये रांची ट्रिप के 1958 के साल वाली कहानी को बना करके तुमसे मजाक किया है, ताकि हम तुम्हें ये रियलाइज़ करा सकें कि तुम अपने घमंड में, अपनी अमीरी के अहंकार में और अपने अकेले रहने के मिजाज में इतने मशगूल हो गए हो कि अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना भूल गए हो, उनके दुख दर्द को समझना भूल गए हो। मैं चुन्नी लाल तुम्हारे पास कितनी बार आया कि मुझे कोई जॉब दिला दो या थोड़ी मेरी फिनेंशियल मदद कर दो। तुम सक्षम थे, फिर भी तुमने मेरी मदद नहीं करी। तुम बहुत ज़्यादा मतलबी हो चुके थे। तो तुम्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम कितने मतलबी हो चुके हो, हमने तुम्हारे साथ ये मजाक किया। तो मैं तुम्हें ये बात बता देता हूँ कि तुम 1958 में कभी रांची नहीं गए थे। तो अब परेशान मत होना। मुझे नहीं पता था कि हमारे मजाक का तुम्हारे ऊपर इतना गहरा असर हो जाएगा कि तुम रांची तक चले जाओगे और वहाँ गिर पड़ जाओगे और इस हालत में वहाँ से वापस लौटोगे। तो इसके लिए मैं जो हूँ थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन तुम भी ये रियलाइज़ करो कि तुमने दोस्त होकर भी एक दोस्त की उसकी बुरे समय में उसकी मदद नहीं करी। लेकिन मैं अब तुमको एक खुशखबरी बता देता हूँ कि मेरा एक नॉवेल पब्लिश हो चुका है, एक पब्लिशर से मेरी बात हो चुकी है, अब मेरे कमाई का रिसोर्स जम चुका है, कुछ दिन में मेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। अपना ख्याल रखना, तुम्हारा दोस्त चुन्नी लाल। उतने में ही डॉक्टर चंदा आ जाते हैं और कहते हैं कि बाबू, बिपिन बाबू, आपने मुझे फ़ोन लगाया था, मैं आपके लिए दवाई लेकर आया हूँ, आखिर क्या हुआ? तो
विपिन बाबू कहते कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आपने सही कहा था कि तुम रांची जाओगे तो तुम्हें सब चीज़ें याद आ जाएंगी। मैं रांची गया, मुझे सब चीज़ें याद आई, मैं चक्कर खा के गिर गया। गिरने की वजह से थोड़ी चोट लगी मुझे कमर में, तो आप मुझे उस दर्द के लिए क्या करिए, दवाई लिख दीजिए। तो डॉक्टर साहब कहते बड़ा अजीब केस है, कल तक तो कह रहे थे कि याददाश्त नहीं है कि 1958 में रांची गया हूँ कि नहीं, अब कह रहे हो कि रांची जाते ही सब कुछ याद आ गया, लेकिन गिर गया, वापस आ गए हो, दवाई मांग रहे हो। मैं एक काम करता हूँ, इस अचरज से केस के बारे में एक मेडिकल जर्नल में ज़रूर लिखूँगा जिसमें बताऊँगा कि ऐसा भी केस होता है। और इतना बोल के दवाई दे के डॉक्टर साहब चले जाते हैं और यहाँ पर हमारी कहानी जो है वो ख़त्म होती है, रिटन बाय द मिस्टर सत्यजीत रे। तो इस कहानी में हमको ये बताया गया है कि कभी भी व्यक्ति को अपने घमंड में, अपने अमीरी में इतना नहीं खो जाना चाहिए कि आप अपने दोस्त की मदद करना भूल जाओ, क्योंकि दोस्त भी बड़े मजाकिया होते हैं, आपसे बदला लेने के लिए, आपको मज़ा चखाने के लिए, आपके लिए वो ऐसे छोटे मोटे मजाक कर देते हैं। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसा मजाक जो है चुन्नी लाल के लिए थोड़ा सा गिरने पड़ने का कारण बन गया, तो उनके दोस्त चुन्नी लाल ने उनको चिट्ठी लिख के माफ़ी भी मांगी। Now this was the story all about. I hope you all have enjoyed the story. Keep writing, keep practicing. Enjoy your study. Always study with the enjoyment. हंसी मजाक की तरह पढ़ाई को करिए बच्चों, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। I'll see you in the next lecture. Till then, bye bye.